shape or off the path that you're on. So yeah, I know that you do it as well. We both try and keep up to it, because eventually we have to get back to responsibility and just guiding our visions for our respective environments. So yeah, it's fun. It's fun. Exactly. And how's the family in Family is Mumbai good. and in Delhi? Yeah. Yes, all good. Anushka is very well. Family in Delhi is also fine. They're all healthy and safe. Obviously, situation is a bit more tricky here, but yeah, we are safe. We are indoors. No real interaction with anyone outside. ठीक है, अच्छा चल रहा है. So far so good. Good to hear Bangalore's that. fine. It is. We are actually in the green zone, but I think government ने advice दिया है कि बाहर ना निकले. So we're trying to stay at home. We're still waiting for everything to be fine and then only go out. Okay. Yeah. That's nice. So ये जो series है, champ, I bring 10 questions and I try my best to not be repetitive. But मैं 3 दिन से आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ. इंसानों ने आपको जितना पूछना था, चाहे आपके दाढ़ी के बारे में हो, आपके लाइफ के बारे में हो, आपके कोई सवाल छोड़ा ही नहीं. तो मैं लगा हुआ हूँ सवाल पूछने के लिए. एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहां आपने एक इंटरव्यूअर को पूछा कि गो एंड चेक योर फैक्ट्स एंड देन आस्क मी. थोड़ा नाराज होते हुए. तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन बनाए इसमें मैं अकेला नहीं हूं. तो अगर नाराजगी आई, मैं नाम भेज दूं जो लगे हुए थे सवाल बनाने में. आपको तो मैं बाद में मैसेज भी कर सकता हूँ ना. आपको तो मैसेज भी इसलिए कर सकता हूँ. वो लोग तो पूछ के, लेकिन मैं उनका नाम भी नहीं, मैं उनको नाम भेज दूंगा आपको जिन्होंने सवाल बनाए ये. अगर आपको लगे क्या है और ऐसी मुंह उठा के आगे सवाल पूछने के लिए, मैं नाम भेज दूंगा. ठीक है. Done. चलिए champ, let's start. Okay. So the first thing that I want to ask you, Virat, is money was always a fight growing up in my household, and I know for a fact it was almost the same at your house also. Now, what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द स्पोर्ट. एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. So that's when I thought कि यार, if you keep going up, you will obviously make a career out of this at some stage, because you are totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं, but मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. क्लैरिटी थी कि यही करना है. एंड आई वेंट अहेड विद इट. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते when I ended up playing under 19 India, that's when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour, and that was to England. तो वो जो टूर फी मिला, उसके बाद my father opened an account for me, जाके जॉइंट अकाउंट खुलवाया. तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा पाथ इधर जा सकता है एज एन इंडिविजुअल. I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहां से आई थिंक वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार, it is not going to be a waste of my time. Whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हांड सको, तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था.
मैं बसों में जाता था, पास एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए, साइकिल भी थी मेरी, साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, मडगाड़, हाँ, कैरियर 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 में कैरियर। किड बैग ठूस हाँ के और फिर उस पे जाता था। फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, हाँ। तो उस पे भी जाता था। बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी। हाँ बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट। ओके ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर, और ओके। उनका जो रोज में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी पकड़, अगर पकड़े गए तो। नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था। हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे। हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या भी है? स्टाफ है। मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया। वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया। नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार, उनसे वापस हाँ, काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते थे। मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था। हाँ। तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ। तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो हाँ। भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। तो यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी। लो जी, चहल यहाँ भी आ गए, हेलो भैया फ्रॉम होम, ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है, कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा। हद्दी हो गई भाई। ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसने घर नहीं आना वापस। ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके अरे भागे। मैं was calling him to get some stuff about you, मैंने इसका वीडियो देखा, कह हाँ, रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा। अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी छबील गुरुपुरब के मतलब, टाइम। हाँ। छबील मतलब it's a gathering where everyone comes together, नहीं there's a नहीं lot of नहीं नहीं things। नहीं नहीं नहीं, वो गुरुपुरब के टाइम पे हम्म। बेसिकली प्रसाद बनता है, हाँ और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। हाँ, ठीक है, वो सबको छोले, रोड पे पिलाते हैं। हाँ हाँ, हाँ वो छोले पूड़ी हाँ हलवा वाला होता है, वो रोड पे मिल रहा हाँ होता है। तो हाँ बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। हाँ हाँ तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को। तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी, अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही हाँ। उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे, वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिरे, गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी, डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ। बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी हम्म। चेंज की, मुनीरका पकड़ी, और हम्म। चला गया छत्रसाल स्टेडियम, अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। हाँ, मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ, अलग था। से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते थे। था। सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, Hmm. बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, Hmm. and only when you Hmm. can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this,
only then will you solely focus on just doing one thing. But till that time I wanted to work hard in both. तो उसके बाद जब results obviously आने शुरू हुए and under 19 tours happened and then he saw कि cricket ज्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me because लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए, तो सपोर्ट मुझे काफी मिला. प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब बहुत चीजें होती है, मेनी फैक्टर्स हैपन वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर. आई वुड जस्ट पुट इट लाइक दैट, आई वुडंट गो एलैबोरेट इट टू मच. तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे obviously a certain someone chose to step out of the rules and say कि ये सिनेरियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा. सो ही अंडरस्टूड एंड ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में. वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले. तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज. ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां कर दो. ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना. ये सब मैं नहीं करूंगा. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया. मैं आई वाज ब्रोकन, बट दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा. So that lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है. So those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है. So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक जॉब होनी चाहिए, that is fair, but to have the courage to say नहीं, अच्छा इसको करने दो for a while. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So Champ, I'm sure you miss him almost every day in your life, but was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that he thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build. Was there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. Uske baad se yaar realize until something big happens in your life, you sort of. True. I was 18 and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, when things started going well, I started thinking yaar कि what is it really that I could have done which meant something. And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is कि whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. You can go spend time with them, but these are the things you can do कि उनको एक comfortable life मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, so that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. No, it's fine. I mean, I you miss him in a emotional way, but I always think positive क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो,
जहाँ पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार आई हैव नो अदर ऑप्शन इन लाइफ. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को, विक्रम बेताल. So विक्रम बेताल. ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. या मेरे को लगता है ये हर दिन क्यों बोलता है ये. यार वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार. अनबिलीवेबल. वो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम सिगरेट टॉनिक सिनकारा पे जाके हैं, हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब नहीं, ये सब वापस नहीं आ सकता. सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली. संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने, ठंडी ठंडी. क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के. अरे वो वक्त ही अलग था. कमाल. तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज थी जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get what पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का. वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम. एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर. अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट लाइफ खुल के इज द ओनली वे टू लिव. और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक वो आई डोंट बिलीव इन हैविंग अ लेयर on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है. Serious, it means something. Obviously you won't talk like, अबे भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए. Obviously you will have, you'll be more articulate, you'll explain it well. But जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं close हूँ. अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है. No, I'll tell you why मैं सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया. तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था. तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ. उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया. कि हाउ इट वाज इन माय हाउस, कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है. बिल्कुल सर. ये I just read 2 days back कि उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं, उसका फिर लिक्विड डालते हैं भाई साहब. अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से. जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम. सेम चीज है, मेरे को रुका गया. अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने. वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी. एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, दिस इज हाउ इट वाज. यार हम नाली से, इसलिए मैं सवाल लेके आया था. पॉलीथिन एग्जैक्टली. आप कह रहे हो निकालनी नहीं हमको. हम नाली से बॉल निकाल लेते. मैंने भी, या फिर वो 2 मैंने भी बहुत नाली से बॉल निकाला है. 2 डंडियों से. द बेस्ट होता था 2 होते थे. एक कहता डाल दे. अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा. डाल दे. डाल दे निकाल.
बहुत बहुत मजा आता था सोसाइटी में ना। और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो, एक माहौल ऐसा होता है, क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी। मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, वो बैडमिंटन खेलता था, वो स्टेट चैंपियन था। तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, उसको लेके आना हमें, उसमें वो हैलोजन लैंप्स लगाना, 2 पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के नेट लाना। तो ये जो एक स्किल होता है ना कि आपने कुछ कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के रिसोर्सेज से, तो वो पैसे जोड़ने पहले, ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड और दुआ भी करना कि हवा ना आए, आज हवा नहीं चलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हवा नहीं इम्पोर्टेंट था। चलनी। और जिस दिन हवा नहीं चल रही तो 12:30-1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है और लगे हुए डेज लाइक वो चीजें बहुत मुझे याद आती हैं। बैल्कनी में किसी की बॉल चली गई, उस घर में कोई रहता नहीं, तो आप पूछोगे थोड़ा ना जाके, पाइप से चढ़ गए 2-2 फ्लोर, कोई डर ही नहीं होता था, पाइप से चढ़ गए सेकंड फ्लोर की बैल्कनी में, वहां से बॉल लेके आ गए। ये सब चीजें बहुत मेरे को, those things will always and always be very very dear to me. You know, to be honest, when I was growing up, I have played more cricket because that was a norm, because you can, ऐसा ही माहौल था, थोड़ी बैटिंग लग गई, थोड़े पैसे जीतने का मन कर दिया, और इसमें ये नौलियों में से बॉल उठाना, कांचे तोड़ देनी, फिर आंटियां घर पे आ गई, फिर सही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही घर पे, मॉम पेल रही, उसके बाद ये नॉर्मल था। हाँ, मैं वो लड़का था जिसको, जो हमेशा एंड में बचा होता था डांट खाने के लिए। सारे भाग जाते थे, उनको पता था इसको कीड़ा है क्रिकेट का, बैट बॉल लेके आएगा, साला फंसता मैं ही था हमेशा। Okay, on that note, I was at home. Obviously iconic moment, मतलब मैं वैसी सेलिब्रेशन करी थी जैसे मैं आज करता हूँ। मुझे लगा घर में ही चला के एग्जैक्टली ये वो वैसा, वो जो बोल्ड है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्लीन बोल्ड हमारे लिए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कहीं भी नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, हम तो नीचे वो जाकर, आइकॉनिक, वो सबसे आइकॉनिक। हाँ, हमने क्या किया, हम नीचे जाते थे, एक बनता था आमिर सोहेल, एक बनता था प्रसाद, और विकेट पे सब दबा के गालियां दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पर कि विकेट ले लिया। इतनी बार इनैक्ट किया हमने वो सीन। आई थिंक वो दिन नहीं भूलेंगे, चाहे, आई मीन, इफ यू आर अ क्रिकेट फैन और नॉट, if you watch sports or not, but I माहौल था ना, and that level of football was something else. Those memories will never go away. Like आपने अभी documentary, I don't know if you've seen Last Dance. I have superb. I mean, Man, whether you know basketball or not, you know Rodman, you know Pippen, you know Michael Jordan. True. You know Kobe Bryant, you know Shaquille O'Neal, because you have grown up watching those games in the morning, and it's nothing comes close. So when I watched that documentary, it's that footage of that time, that for me, whatever the documentary might have been, मैंने मतलब है तो आउटस्टैंडिंग, अगर खराब भी होती ना, मैं सिर्फ फुटेज के ऊपर ही देख जाता, क्योंकि वो मेरे मेमोरी में ऐसी बैठी हुई है. Just magical times, and I'm sure it's like that for everyone, who grow up in their times, but for us 90s will always be very, very I think that was
maybe dangerous or maybe stupid, and thank God you got saved, but something which you thought now, which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, you know, or were you always right and you didn't reach that level? नहीं, क्या बात कर रहे हो, बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी। हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं। इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं। नहीं, हैविंग सेड दैट, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहाँ पे आई वाज वेरी स्टूपिड, वाज 15 अगस्त के टाइम। इट वाज 13th अगस्त। और वो जो टाइम होता है, एवरी फेस्टिवल बाय द वे इज मैजिकल व्हेन यू लिविंग इन अ सोसाइटी। फेस्टिवल का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे आएंगे, दोस्त आएंगे आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं। तो वो 15 अगस्त वाला टाइम तो सुबह 6 बजे बैठ के कन्ने मैंने बांधने, पतंगे मैंने तैयार करनी, मांझा पड़ा हुआ है, सद्दी के ऊपर लगा हुआ है। मैं प्रॉपर भाषा में बोलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा डोर और ये। जिनको समझ में आया समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया बाहर में जाओ, चलो। हाँ, वो सद्दी के ऊपर मांझा लगा हुआ है, चरखड़ी लपेट रहे हैं, ठीक है, लेके गए हम। तो अब मेरे को शौक क्या था, मैं लड़कों के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आता था, वो तेज बॉलिंग वगैरह करते थे। अब मुझे पतंग उड़ाने का भी उनके साथ शौक था। तो मुझे क्या जॉब दिया जाता था कि हम उड़ाएंगे, तू लूट। साला मुझे डंडा पकड़ा देते थे लंबा, और कहते थे पीछे से जो पतंग आ रही है तू वो लूट। हाँ, तो अब लूटते 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 क्या हुआ कि भाग रहे पतंग के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारी ना सोसाइटी में छतें जुड़ी हुई थी। तो क्या कैसा मतलब, वो टेरेस जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद चुपचाप आ गया। मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, मेरे को लगा मैं एक्टिंग कोई नहीं करूंगा आता, कि मैं कहीं गया नहीं हो। कोई नहीं आता, कोई नहीं, अरे कोई तो आया नहीं, फोन नहीं है, किसी को क्या बोलूंगा। कोई आया तो नहीं, पर ये सुनो, मेरी माँ कितनी शातिर है। मैं घर पहुंचा तो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं गए नहीं कहीं। हाँ, आपको फोन करता हूँ वापस, ओके। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ, इसके जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ओके, बाय। ऑल वेल। हाँ, ऑल वेल। वो बोल रही है वहां पे एयरपोर्ट वगैरह। हाँ बोलो बोलो बोलो।
मेरे को भाई 50 रुपए दिए। अब मैं शादी वगैरह में जाते मैं देखता था यार लोग ना बड़े नोट उड़ा के नाचते हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। तो कोई घर पे आया होता, मुझे 50 रुपए दिए, ये सामान लेके आ जा। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा चढ़ा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई 50 रुपए का नोट देख के। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, घर से नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके वो मैंने उड़ाए, उसके बड़े सारे टुकड़े उड़े, मैं उसके नीचे नाच के आ गया। मैं सामान ही नहीं लिया। अब वापस गया, बताओ कैसे, जो मुझे मार पड़ी है घर पे। बस ये पता है मुझे लगता है चैंप, अगर हमने वो वीडियो दिखा दिए ना, अगर होते जिस तरह हमें पेला गया था, आजकल के बच्चे तो डर के मारे उठेंगे नहीं। नहीं नहीं, चांस ही नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। मैंने तू करके बात करता था। अच्छा, मतलब गुस्से में या ऐसी? नहीं नहीं, ऐसी मेरे को आदत थी तू करके बात। एक दिन पता नहीं क्या हो गया, दीदी को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ गया, भाई साहब ऐसा मारा मुझे, मैं त निकलना ही बंद हो गया मुंह से, मेरे आ ही निकलता था आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। उफ। आपने शादी में डांस की बात की। हाँ। हम लोग, मैं ममता मॉडल में था विकासपुरी में, तो मैं हॉस्टल में रहता था मॉडर्न। तो मैं टीसी वीसी करवा कर बिना बोले टीसी वीसी लेकर अपने स्कूल में ममता मॉडल में भर्ती हो गया। मेरे डैड आए आर्मी से वापस, एंड ही वेंट मैड। तो घर में बहुत ज्यादा रोना वोना हुआ, मम्मी बहन रो रही है, डैड कह रही है, वो वगैरह वगैरह जो भी है, बट बाद में सॉल्व हो गया। तो मैं ममता मॉडल में था, हम लोग हॉस्टल में थे, मतलब दिल्ली में रहते हुए भी मैं ममता मॉडल में था। हाँ। तो लड़कों ने जुगाड़ निकलवाया कि भाई शादियों में सिर्फ पैंट शर्ट की जरूरत है, तो 2 लड़के फुटबॉल टीम से निकलेंगे, शादी में जाके नाचेंगे, हाँ हम शर्मा जी के बेटे, हम ये है, खाना भर के पूरी टीम के लिए ले आएंगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे शादी होती है पूरे वेस्ट दिल्ली में, विकासपुरी में, तिलक नगर में, उत्तर नगर में, लड़के चले जाएंगे। तो मैं कभी नहीं आता था, मैं उनको प्लानिंग बताता सीधा खा के निकल जाना है। और गुस्सा उन पे आता था, और गुस्सा आता था, अभी यार स्वीट डिश भी पड़ा, मैं छोड़ ना स्वीट डिश यार, खाना खा लिया पेट भरने, निकल अब। नहीं यार वो उधर पकोड़े पड़े हुए, मैं कहा चल भाग ऐसे, निकल ऐसे। वो क्या टाइम था यार, क्या टाइम था, मजा वही था। अच्छा, खाने की क्लास। खाने की बात आ रही है, मेरा नेक्स्ट सवाल आपको खाने को लेकर है, लेकिन उसके पहले स्लीप वेल। It was everything for me. Matlab, I would not take credit for this. Yes, you put in the work, but someone has to give you direction. For me, the biggest factor, the biggest milestone from my career changing to a certain
what to eat when, क्या खाना है, कैसे खाना है. Then what happened was I started having a feel of it myself, कि क्या हो रहा है, क्या reaction हो रहा है body का, 3 weeks, 4 weeks, month, 2 months, what am I feeling. I started paying attention to what was happening inside rather than focusing about कि ये अच्छा हो जाए फिर. I have to do what I'm doing. My hard work might be twice or thrice as more as more than someone else, because मेरी body वैसी type की है, मुझे ये सब और strictly करना पड़ता है. Now, I think I'm being respectful to the opportunity that I have in life. I'm not doing anyone a favor. I'm literally living up to a responsibility, the place that I'm in, and giving my best output every time that I go on the field. If I can't give my 100% every time that I go on the field, I'm not being honest to the sport. And if I'm dishonest to the sport, I can't sleep at night. It's as simple as that. That's that so is well why said, man. I eat well, I train well, and I'm like a maniac. And if you can't work hard, then you shouldn't be here. There's someone better always wanting to work harder than you. True. And I think why I asked you this is because my next question, which is A and B, relates to this. I talk to a lot of people that are around you, including, I won't take the player's name, but few players, few people that know you. Let's not drop names, but all of them said that the aggressive attitude that you see on Virat when he's playing, he's very calm when the game is over. Bloody hell, if I scratch myself, I scratch myself. But if I don't give my 100% in a 50-over ODI, from first over to the 100th over, एक ball पे अगर आप full अपना पूरा effort नहीं दे रहे हो, even when I'm sitting outside clapping for someone else, it doesn't mean कि batting नहीं हुई या fielding में हो गया तो दिन खत्म हो गया. नहीं, the day ends when you pack your bag and you sit in the bus. Yeah, the and that's what before that. And that's what Chahal told me, and of course I have to take his name because he's here. That वो उनके वर्ड्स में वो आगे से इतना कुछ करते हैं कि हमें अपने आप फॉलो करने का मन करता है. और विराट
was that moment where, you know, I started to realize that this is not all about me. True. Life is to look at another person and live like that. So then you become confident of who you are, and you become confident of giving, of being compassionate. तो ये mindset मुझे after I there is no better feeling, and that's something that I think everyone should strive to do. तो मेरे पास कोई problem लेके आता है, if you know I am in a position to do it, I will always and always do it. That's really sweet. That's really sweet. So हमारे 5 सवाल खत्म हो गए, and I hope चाहल सर खुश है कि मैंने उनके सवाल पूछ लिया. I have a small rapid fire. I don't have to ask you to be rapid because you're always like that. You're always feisty. So let's see. The first one, Virat Kohli saab. The one knock. Didn't even think. Okay. How good was he, man? I saw a video where he got man of the match for 7 catches against West Indies. आप वो छोड़ो, आप अभी लेजेंड्स का मैच हुआ था ना, बॉम्बे में 2 मैचेस हुए थे. अच्छा. वेस्ट इंडीज एंड आई थिंक इट वाज मिक्स, बहुत कंट्रीज के आए थे प्लेयर्स, एंड he flew. I just saw someone flying. I was like, ये कोई youngster खिलाया हो क्या? बाद में दिखाया Jonty and you're still running around like that. Unbelievable. Unbelievable. Best ever. Yeah. All right. The third question. One player from the Indian team with the worst possible football touch. Because I know you guys play warm-up football. So who has the worst football touch? अभी? हाँ. कुलदीप यादव. वो बहुत आइडिया है. बॉल दे दो सामने, उसके बस की नहीं है. फुटबॉल नहीं, चांस ही नहीं है. Okay, Kuldeep, I'm so sorry. Yeah. ठुड्डे मारता है, ठुड्डे. Okay, this is a good one. ठुड्डा बोलने वाला मैं भी. ठुड्डे मारता. आ गया. बड़ा गुस्सा आता था.
Yeah. tapped it on the head. But वो जो delicate वाला था एक lap shot, that was amazing control. I could never play that shot well, so I would look to steal that. Yeah. Okay. Yeah. Okay. The next one. The one mindless movie you can watch over and over again for laughs. Uh, अलग The level movie. Superb, man. What a movie, man. Unbelievable. What a movie. Yeah. Okay. The next one is, I think I know the answer, but I still ask for people. The one non-cricket athlete who makes your jaw drop when you watch him or her live perform. Live as in on TV? On TV. You know the answer. To your best of ability. Yep. And I will never forget that. And that I can He's a see beast. with the way you handle your diet, your routine, your discipline now. And I understand where you come from. You need to lead and you need to set the vision right for everyone else to also do that so that the level of football collectively goes up. True. And to take that True. responsibility, you need
पंजाबी गाना ऑफ कोर्स। कोई भी दोस्त, कोई भी। काला चश्मा। वो मुझे बहुत पसंद है गाना I वो। could dance to that song at a party, at a wedding. I could listen to that before a game. I could add chilling at home. किसी कि वहां पर जिम होना चाहिए। हाँ। So my question to you is that a can you hear me now? I lost that. I think I I lost. lost you for a bit. Yeah, I lost lost you you. for a bit. हाँ हाँ बोलो। Okay. हाँ। कि जब ये what was the initial conversation like? Can you hear me? Hello? Hello. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ।